try out. So thanks all for coming. I'd like to thank Mr. Raneji for taking out his time. We just had a normal discussion one day that societies in the scenario of EV charging station, सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरीज, कमेटी मेंबर को बहुत डाउट्स होती है कि ये चार्जिंग स्टेशन होता क्या है, क्यों लगाना है, सोसाइटी में क्यों लगाना है, जो गाड़ियाँ लेते हैं वो फॉर्म में लेके क्यों नहीं चार्ज कर सकते, क्या होता है, कैसा होता है। तो इनके पास 100 लोग 100 सवाल कर रहे थे एंड उनको वो सारे सवालों के जवाब एक साथ देने थे। तो ये सीताराम राणे सर का इनिशिएटिव है, इन्विटेशन आप लोग को गया है एंड उनके एडवाइस पे हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड and after looking at a good turnaround, we should be doing it in Bombay, Pune and other cities too. Thank you so much for the support. So this today what we are going through is we will present you the basic fundamentals of an EV and how the charging infra work in that. And we will take you through a quick 30-40 minute presentation, take you through the technicalities of what is EV stand for, what does the EV do, why the charger has to be there, types क्या होते हैं वगैरह वगैरह। So can we start? Life my first time stage by out. So thanks all for coming. I'd like to thank Mr. Raneji for taking out his time. We just had a normal discussion one day that societies in the scenario of EV charging station. It was a collaboration with Exicom Australia and HFCL India, and later on it became Exicom India, 100% owned subsidiary of Indian owner. And out of these two manufacturing plants in Gurgaon, one is basically for lithium-ion battery for mobility applications. Like you might have seen a lot of two-wheeler, three-wheelers which are on electric vehicle. They use lithium-ion battery cells, battery packs. So we manufacture that. So that is one manufacturing facility, and another one is for electric vehicle chargers. And introduction करके मैं आप लोगों को बता दूँगा रियल सब्जेक्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ EV। इसे अगर लगा दूँगा वो बोलेगा भाई मेरे को इतना ही कर पड़ता है, मेरा वो इतना ही है, मैं एक टाइम पे एक ही लड्डू चबा सकता हूँ, 4 लड्डू नहीं चबा सकता। So it will still take 3.3 kilowatt from the charger, irrespective of how big the charger capacity is. I still charge it that way. So I give a usual example कि मेरी बैटरी 70 या 30 kilowatt बैटरी, I call it in a liter so that you guys understand. This battery is 30 liters, and if I charge it with a 3.3 liter per hour वाला नल, तो वो 10 घंटे में शायद चार्ज करेगा या 9 घंटे में चार्ज करेगा, right? That's the very basic simple fundamental of how EV charger and a battery things works. तो 10 years back जो हमारे मोबाइल फोन थे ना, तो आपको याद रहेगा कि नोकिया का कनेक्ट का राउंड था, सैमसंग का स्क्वायर था, आईफोन का अलग था, राइट? सो सेम थिंग हैपेंड विद कार इंडस्ट्री आल्सो 2 years बैक। ऐसे टाइप के चार्जर्स थे। अमेरिका का राउंड था, जापान का राउंड में 2 अलग डॉट्स थी, यूरोपियन नेशन का ऐसा था, चाइना ने अपने अलग से बनाई, बराबर। इन इंडिया वी यूजुअली by default went with Chinese, but then we believe China is not a good friend of ours in 2019, and then we shifted to European standard of charging us, is called CCS. All the cars in our country come with CCS charging system. तो अगर आपको लगता है कि हम कोई चार्जिंग गन लगाएंगे, उसमें सोसाइटी ने खर्चा किया, चार्जर लगाया, तो आपको अगर लगता है ना कि वो गन चेंज हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। The all India Automobile Association has come together and decided that they will manufacture cars with CCS type only. अभी इसमें जो कुछ लोग हमारे रूम में हैं जिनके पास C टाइप चार्जर होता है, उसमें लोग जुगाड़ करके आईफोन का प्लग लगाते हैं, राइट? आईफोन वाला चार्जर में आप कोई और फोन लगाओ तो जब भी ना उसमें एरर एक आता है, बराबर है? सो वो एरर आने का कारण है लोग जो अलग अलग साइज की चार्जर बनाते हैं उसमें कारण होता है, बराबर? क्योंकि अगर few people in this room may know what is voltage, amperage and kilowatt है, तो ये एक कॉम्बिनेशन अलग अलग हार्डवेयर अलग तरीके में काम करती है। तो CCS जो है ना, इसका वोल्टेज अलग है, इसका एम्परेज अलग है, इसका किलोवाट स्पीड अलग है, प्लस वन ऑफ दिस डॉट आई डोंट नो, एक कौन सा टर्मिनेशन पोर्ट कौन सा है? टर्मिनेशन वाला ये सेंटर वाला नीचे वाला इस टू। So this chargers has a LAN connection also in that, ठीक है? तो जब कोई चार्जर गाड़ी में कनेक्ट करता है तो जय श्री कृष्णा जयराम जी की पहले बात होती है कि भैया आप गुजराती बात करोगे, मराठी बात करोगे, क्या बात करोगे? फिर बात होती है भाई तेरा खाने का कैपेसिटी क्या है, तो आज थाली खाएगा, डोसा खाएगा, इडली खाएगा, बरोबर? एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग द पावर, बराबर? सो दिस कम्युनिकेशन हैपेंस
एंड इफ यू बी टू एनी चार्जिंग स्टेशन एंड कार कनेक्टेड, एक क्लिक साउंड आता है, टिक टिक करके आवाज आता है, दोनों हाई लो करते हैं एंड देन चार्जिंग का गाड़ी एक यहाँ पे एक लॉक होती है, उससे गन लॉक कर देती है कि बंदा भाग के नहीं जा सकता, फिर चार्जिंग स्टार्ट होती है, बराबर। At what language discussed, what language accepted, and what power combination has to be given. But इसके बीच में अगर आपने बोला कि भाई मैंने चाइनीज गाड़ी लाई है, मैंने उसमें CCS चार्जर लगाना है, तो क्या आएगा कि जब आपने उसमें अडाप्टर कुछ बना के लगा दिया 3D प्रिंट करके कुछ भी करके, वो कम्युनिकेशन होगी नहीं, and the charger will not be. This is purposely done so that people do not do jugaad. If Indians are known for doing jugaad, that jugaad cannot be done, and this communication fails. Is that strength if fire is there in the vehicle? vehicle जब आग लगती है उसका कारण ये है कि अगर आपको मैं सलाइन लगाई, आप लोग में कनेक्ट करके सलाइन लगे देंगे ना, मतलब नम पड़ता है, आप बहुत सलाइन चढ़ने के बाद राइट, तो आप नर्स को बुला के बोलते ना भाई मेरा नम हो गया, भाई बंद कर, बराबर। क्योंकि चार्जर इज ऑन, आपका 98% बैटरी फुल हो गई और कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे तो चालू रहेगा ना भैया, तभी आपको। सो काफी टाइम लोग बोलते हैं यार पार्किंग में चार्जर मत लगाओ क्योंकि लोग ईवी लेके आएंगे, वो चार्ज करेंगे, उसकी आग लगेगी, तो एक चार्ज चक्कर है बाकी 4 गाड़ी पे आग लगेगी, राइट? That doesn't happen. You may only find only one incident which happened last month where a Nexon caught fire because there was some wiring he had done mostly in the headlight, for which one Nexon caught fire. You must not have heard a single EV car had caught fire so far. That is because very strict vigilance is there in terms of what car will come, what brake system it takes care, what language it speaks, a multi-level of testing that happens with the charging equipment and the vehicle, and that's when it finally runs over. तब तक वो आगे नहीं जाता है। जितनी आप लोग फायर इंस्टेंस सुनी रहेगी, that is mainly 2-wheelers, because 2-wheeler में ऐसा है कि कोई भी तो 4 महीने 6 महीने में आगा आ जाता है। This is why all our big friends who are very close to our PM, who are big corporations, are investing chargers in your societies. Those are cons are here. Next. I'm not going to pick now. I'm usually known for picking pretty fast. और बाकी बराबर। So capex opex option होता है। Next step. This is the pros and cons of an capex version where we the society owns the charger. इसका एक है कि society can choose what type of charger they want to go for. Sit with the consultant, he will guide you AC 3.3 लगाना चाहिए, ये वाली, इससे बड़ी वाली, उससे बड़ी वाली, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे चलाओगे, RFID से, ऐप से वगैरह। Society will own the device. डिवाइस को मुझे चलाना है, नहीं चलाना है, फेंकना है, क्या करना है, सोसाइटी विल डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू विद इट। दे वांट टू रेस्ट्रिक्ट इट विद सम ओनली मेंबर्स, दे वांट टू गिव एक्सेस टू आउटसाइडर, व्हाटएवर सोसाइटी कैन डिसाइड। इट्स एक्सेस फॉर सोसाइटी। नेक्स्ट, कम्युनिटी चार्जिंग। व्हेन इट्स अ कम्युनिटी चार्जिंग, लोग आएंगे, साथ में नीचे बात करेंगे, थोड़ी दोस्ती करेंगे, कोई दो गाड़ी का लगा देंगे, थोड़ा दोस्ती होगी। चार्जिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी। और इसमें ये फायदा ये होता है अगर सोसाइटी ऑन द चार्जिंग स्टेशन, जो रेट पे पावर आ रहा है और जो रेट पे मेंबर्स को देना है, दिस विल बी डिसाइडेड बाय सोसाइटी कमिटी। बराबर, आपको साथ में पावर आ रहा है, आप साथ में दे दो, अगर सोसाइटी को कमाना नहीं है, बराबर। बट व्हेन ए कॉर्पोरेशन कम्स, व्हेन यू आर डूइंग ओपेक्स मॉडल, देन द गाय हु इज पुटिंग द चार्जर इन योर प्रॉपर्टी, ही विल नॉट आस्क यू कि क्या रेट डालो, उसको पैसा निकालना है, वो आपको ऑप्शन नहीं देगा, राइट? So that's the one pros and cons part of it. Our TMC is giving rebate on property tax if you put a charging station in your property. The GR is coming pretty soon. उसका actual numbers आना नहीं है, but they are working on giving SOPs and tax benefits to societies who are putting charging station in the society. तो फायदा सोसाइटी का ये है कि अगर अपन ये आ रहे हैं, इसमें नुकसान ये है कि खर्चा होगा, सोसाइटी has to invest 50,000, 60,000, 1 lakh, 2 lakhs in multiple charging monitoring में होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ ROI हो सकता है कि आप सोचोगे कि अरे हमारे बिल्डिंग में 2 आने वाली, एक ने गाड़ी बुकिंग कैंसिल कर दी, एक ही गाड़ी सोसाइटी में, वो एक ही बंदा हफ्ते में 2 बार चार्ज करता है, तो हो सकता है आप तो हिसाब लगा रहे हो मैं जितना रोजी पिक्चर दे रहा हूँ तो रोजी नहीं होगा, दैट टाइम इट मे बी हर्टिंग टू यू। The pros and cons of OPEX model, where you're talking about a third party comes to a society and presents कि आप
हम आपकी सोसाइटी में चार्जर लगाते हैं, इसका फायदा भी है, सोसाइटी को पैसे नहीं लगाना है। आप एजी में जाओगे, बोलोगे भाई नीलांजन ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, हम लोग 70 लाख चार्जर का लगाते हैं, और 2 जन ऑब्जेक्शन देंगे जरूर, बराबर है। तो फिर टेल दें कि बहुत हमें पैसा लगाना ही नहीं है, ये फलानी कंपनी आएगी, चार्जर लगाएगी, एमएससीबी में जाना है, उसका वायर लाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, ऐप में डालना है, बिलिंग सिस्टम करना है, ये सब तामझाम अपने को लेना ही नहीं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने आई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, भाई आपका पार्किंग यहाँ पे मैं 5 साल तक चार्जर का ऑपरेशन चलाऊंगा, आप मुझे निकाल नहीं सकते, कहानी। सोसाइटीज does not have to invest anything, they don't have to go for getting a new connection, nothing, बराबर। The major pros and cons of capex opex on business. I just told you guys before, ये मोटा मोटी 55,000 का चार्जर है। कभी कभी कुछ जगह पे 30 से 30,000 रुपये खर्चा होता है, केबलिंग, कैनोपी, मीटर, न्यू मीटर कनेक्शन वगैरह वगैरह, बाद में और भी कुछ खर्चे हो। तो एक अपन बोलते हैं कि 15 रुपये का टेरिफ अपन रखते हैं, दिन में 2 बार गाड़ी चार्ज होगी, 2 सेशन से डे, 30 आवर का बैटरी पैक है, 30 days a month, 12 months in a year, you're talking about a minimum revenue of 3.2 lakhs. इसमें से as a sustainer, since we give the billing system and all that, we take 15% of our taxes and aggregation fees. 1.25 लाख आपको देना है डिस्कॉम को, एमएससीबी को, and this much money goes to your, capex fund. अगर सोसाइटी को चार्जर का भरोसा ही नहीं, बरोबर है, बट लगता है कि आज नहीं तो कल शायद चार्जर लगाना पड़ेगा, हो सकता है कि आप कम्युनिटी चार्जिंग नहीं हो सकता है कि आप बोलोगे कि 100 पार्किंग में से 50 लोग गाड़ी लेंगे आज ये तो कल, ये तो लोग पहले से बोलते थे भाई मैंने बुक कर दिया, 6 महीने में गाड़ी आ रही, मेरे को चार्जर का परमिशन दे दो, बराबर है। इन दैट केस सोसाइटी कैन डू इज दे कैन प्लान काय एप्रिल उद्या काय महाराष्ट्र डे लक्षात आहे सांगा आज उद्या महाराष्ट्र डे आणि त्याच्या पूर्वसंध्येला हा कार्यक्रम आयोजित केला। आम्हाला महाराष्ट्र मिळाला सहजासाठी नाही झाला, 105 रुपये केलेले आहे। त्याचबरोबर आपण काल आम्ही आज वर्तमानपत्रामध्ये वाचता कमिटीमध्ये एक इमारत बसून वाचन त्याच्या खाली निघाले त्याच संबंधी लोकांना सोसायटीला मार्गदर्शन करत असतं की तुमची इमारत तुम्ही चांगली ठेवा, वेळेवर ऑडिट करा, वेळेवर दुरुस्त करा। हे जर केलं नाही तर अशा प्रकारच्या दुर्घटना होतात। काही वर्षांपूर्वी खंडोबाची दुर्घटना आपल्याला माहितीच आहे। त्या निमित्ताने आपण 105 मरणे किंवा तिला झालेले 5 मृत्यू या सर्वांना 2 मिनिटं उभं राहून श्रद्धांजली देऊ। काही सांगायची गरज आवाज कमी करणे सांगायची गरज काय राहिली नाही, कारण सगळं त्यांनी सांगितलंय। एमएससीबी तुमच्या बरोबर आहे, उपनिबंधक साहेब तुमच्या बरोबर आहे, आम्ही तर तुमचेच आहोत मानलात तर बरोबर आहे ना, कधी पण होऊ शकता। तर यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून काम करूया असं माझं मत आहे। शेवटी आपण याच्याविषयी ज्या काय तुमच्या शंका असतील त्या तुम्ही विचारा, तुमच्या प्रत्येक शंकेचं समाधान आपण सगळे मिळून करतील। त्यासाठी तुम्हाला घाबरायची काही कारण नाही। यानंतर सुद्धा या संबंधित जर काय अडचणी तर फेडरेशन आहे, उपनिबंधक आहे, तुम्हाला सोसायटीला मात्र माझं मत आहे, आम्ही सोसायटीच्या संबंध आता मी ज्या ज्या ठिकाणी सध्या आम्ही सेमिनार घेतो वेगवेगळ्या विषयाचे टीम कंट्रोल असतील, जनता मुक्त समिती असेल, त्यांचे सेमिनार आमचे चालू आहेत, त्या सेमिनारमध्ये आम्ही सांगतोय हे विषय। तर याविषयी शासन ठाम आहे की जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्जर लागायला पाहिजेत आणि ते लागले तर सोसायटी या व्हेकलची विक्री होणार आहे आणि जे घेतील त्यांच्यासाठी सुविधा ही दिली नाही तर सगळ्यांना त्याची अडचण होऊ शकते। म्हणून आपण सगळ्यांनी याबाबत सहकार्य करून तुम्हाला जी जी मदत लागेल त्या मदतीसाठी आम्ही तयार आहोत। त्यासाठी सगळ्यांनी त्यासाठी सहकार्य करा। या निमित्ताने मी विनंती करेन सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी जे आहेत तुमच्याबरोबर जे काही माहिती पत्रक दिली आहे त्यामध्ये ठाणे वैभव,
आणि हाऊसिंग फेडरेशनच्या वतीने संयुक्त विद्यमाने आपण उत्कृष्ट व्यवस्थापन गृहनिर्माण संस्था स्पर्धा आयोजित केली आहे. तो फॉर्मॅट तुमच्याबरोबर दिलेला आहे. तो फॉर्मॅट भरून मी 15 मेच्या अगोदर ठाणे विभाग किंवा हाऊसिंग फेडरेशनच्या कार्यालयात या. तुमच्या सगळ्या सोसायटीने तो भरून द्या. आपण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्याचा बक्षीस समारंभ आपण ठेवणार आहोत. तारीख अजून निश्चित नाही आहे, तर तुम्ही सगळ्यांनी भरून द्या अशी विनंती करतो. थांबतो. आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने आला त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार.